Do you dream of working into the Big Four industry, that too in abroad, like UK, Canada, Dubai, Singapore? What if I'm going to tell you that many of the articles, chartered accountants, professionals are struggling to be there, but the problem is they don't know the right process, they don't know the right strategy. So today in this video, I'm going to tell you the right process, the strategy, the persistence, how you can work into the Big Four industry. Hello everyone, I'm Preeti Nagi. I'm a chartered accountant, and today in this video, I'm going to tell you about the exact strategies, the right steps, the techniques that you need to follow to work into the Big Four industry, and that too in abroad. First of all, we're going to discuss about it why this Big Four abroad industry is totally a game changer. Okay, first of all, let me start with a question. How many of you actually want to work abroad? How many of you actually want to work abroad but not want to go to abroad? That means they are looking for the work from home opportunities and that too get connections with the abroad. What kind of exposures you are going to get in abroad? So many questions are there in the mind of the professionals, in the chartered accountants, in the articles also. So today I'm going to address all the queries. So obviously when you're going abroad, when you're working abroad, आपको exposure मिलने वाला है global clients का, right? So when you're going to get exposure of the global clients, तो आपकी जो recognition है as a global CA recognize होते हैं. So second factor that you need to know about it, you are going to exposure about the IFRS, international taxation, क्रॉस बॉर्डर ऑडिट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके लिए जानने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ऑडिट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीएस दैट आर वर्किंग इन इंडिया दे डोंट नो अबाउट इट व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर ऑडिट्स. तो आपको उस एरिया में भी काम करने का आपको मौका मिलता है. ऑब्वियसली बेटर वर्क कल्चर, बिकॉज फॉरेन में वर्क कल्चर अलग है, इंडिया में वर्क कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट है. यू आर अवेयर अबाउट इट. So better work culture, obviously the salary pay scales that you are going to get abroad, it's completely different that is paying in India. So आपको better work culture मिलता है, better salaries मिलती हैं, आपको global exposure मिलता है और आपको उन domains में काम करने का मौका मिलता है जहां आपको इंडिया में काम करने का मौका बहुत ही कम मिलता है. When you are going to get a career opportunity globally, obviously you're going to get internationally employable. So that is where you're going to get a global opportunity. तो आपकी career growth जो है obviously comparative to other person that will be faster. But जो आपकी efforts होंगी comparative to other person वो भी आपकी ज्यादा होंगी. So now going to get to the point. हमें जाना है, हम क्या करें, कैसे करें. So the step by step process, आपको अपने abroad अगर जाना है अपनी career opportunities के लिए, तो how you will be able to crack it. Of all, before going through the process, because हर एक कंट्री का, हर एक जगह का, हर एक डोमेन का प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है. तो मैं आपको एक यूनानिमसली ये जरूर बता सकती हूँ कि इसका ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, बट द प्रोसेस रिलेटेड टू द कंट्री टू कंट्री इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो फर्स्टली आपको स्टेप क्या है, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी कंट्री जाना है, आपका टारगेट क्या है. आपको यूएई जाना है, आपको यूके जाना है, आपको सिंगापुर जाना है, आपको दुबई जाना है, आपको न्यूजीलैंड जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, या आपको उसके अलावा कहाँ जाना है. बिकॉज द प्रोसेस रिलेटेड टू द यूएई एंड सिंगापुर इज लिटिल बिट फास्टर, बट रिलेटेड टू द अदर कंट्रीज डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बाकी कंट्रीज का बहुत ज्यादा है. इसका मतलब अगर आपको यूएई जाना है, अगर आपको सिंगापुर जाना है, तो आपका जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन वहां पे लिटिल बिट कम है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज. बट बिफोर दैट यू नीड टू डिसाइड कि कौन कौन सी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटी है और मैं कहाँ कहाँ जाना चाहता हूँ. डिसाइड ओनली वन कंट्री, बिकॉज उसका प्रोसेस जब आप स्टार्ट करोगे फॉलो करना, तो ऑब्वियसली यू हैव द प्रोफेशनल स्किल्स, so you will be able to crack it. But firstly you need to decide कि मुझे कौन सी कंट्री जाना है. सेकेंड पॉइंट, बिल्ड योर रिज्यूमे.
मुझे वहां जाना है ये मैंने सोच लिया है, बट सोचने से मैं वहां पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब जो प्रायर प्रोसेस है मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा बिफोर अप्रोचिंग दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने कंट्री डिसाइड करनी है, लेट इट बी आई वांट टू गो टू सिंगापुर, राइट? तो मुझे सिंगापुर जाना है, मुझे सिंगापुर में काम करना है, मुझे सिंगापुर में अपना प्रोफेशनल करियर ग्रोथ बनानी है। उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस बैक एंड पे करने पड़ेंगे, तो दैट विल बी द सेकेंड स्टेप। सो उसके लिए क्या है, मुझे इस डोमेन में काम करना है, तो सिंगापुर में कौन कौन सा काम होता है उसके लिए आई नीड टू डेवलप माई रिज्यूमे फर्स्ट, क्योंकि मुझे अपनी बिल्टअप पहले करनी पड़ेगी। आई कैन नॉट से कि पहले मैं वीजा लग जाए, मुझे वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तब उसके बाद मैं बिल्डअप कर लूंगा। दैट इज नॉट अ राइट प्रोसेस, बिकॉज मेनी ऑफ द प्रोफेशनल दैट आर अप्रोचिंग मी, कैसे जाना है, दे ऑफ द थॉट प्रोसेस आप कुछ अपॉर्चुनिटी बता दो, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्डअप कर लेंगे। माई थॉट प्रोसेस इज firstly decide the country, build up your resume, build up your profile and then approach it कि अब हम अप्रोच करने वाले हैं। obviously countries are going to approach it because obviously professionals की ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा वैल्यू है जो हमें कभी भी रियलाइज नहीं हो रही है। रिज्यूमे में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके रिज्यूमे में थोड़ा सा IFRS कंप्लायंस का एक्सपोजर होना जरूरी है, बिकॉज दैट इज इंटरनेशनली वैलिड। सेकेंड, आपके जो रिज्यूमे है उसमें अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में, आपके ऑडिट एक्सपोजर के बारे में अगर चीजें रेलिवेंट हैं, बिकॉज ऑडिट की जो वैल्यू है वो फॉरेन में बहुत ज्यादा है, इंडिया में कंपैरेटिवली उसकी कम है। जो फॉरेन में उसकी ऑडिट की वैल्यू वो बहुत ज्यादा है। सो अगर आपके रिज्यूमे में IFRS का कंप्लायंस का कुछ प्रोसेस है, अगर आपके रिज्यूमे में टैक्स का एक्सपोजर है, अगर आपके रिज्यूमे में कुछ एक्सेल के बारे में, लाइक यू नो अबाउट एक्सेल, एडवांस एक्सेल, और आजकल तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट, इट्स AI एवरीवेयर, एंड इफ यू आर एबल टू ग्रैब इट कि मुझे AI प्लस एक्सेल, AI प्लस ऑटोमेशन, इसके अलावा मेरी नॉलेज है, तो आपको उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ऑब्वियसली आपको दूसरों से ऑब्वियसली वैल्यू एडिशन दे पाओगे। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये सारी डोमेन्स की नॉलेज है, प्लस ऑब्वियसली टू बिल्ड द रिज्यूमे, आपको क्या है, कुछ ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वॉच माई अनदर वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू हाउ टू बिल्ड द रिज्यूमे विद द AI, तो आप उससे बिल्डअप कर सकते हो। तो उसके लिए आप ग्लोबली जो रिकॉग्निशन के लिए फॉर्मेट्स वैलिड है, वो उसकी वीडियो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि फॉरेन के लिए कौन कौन से रिज्यूमे के फॉर्मेट्स हैं, कौन सी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो वैलिड है, जिसके रिलेटेड आप अपना रिज्यूमे बिल्डअप कर सकते हो। योर लिंक्डइन प्रोफाइल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि लिंक्डइन प्रोफाइल क्या ही करना है, हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इतना सोशल मीडिया नहीं चलाता, दिस इज योर रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ऑनेस्टली सेइंग दिस इज कंप्लीटली योर रॉन्ग स्ट्रैटेजी। रीजन, लिंक्डइन आपका ऐसा एक प्रोसेस है, ऐसा एक सोर्स है जहां से बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आपको कनेक्ट करती हैं, इंडियन कंपनीज आपको कनेक्ट करती हैं, एंड दे लुक आउट फॉर कि कौन कौन सा पर्सन क्या क्या काम कर रहा है। अगर मुझे कोई पर्सन डिमांड में है, मुझे फॉरेन में कोई पर्सन चाहिए, आई एम गोइंग टू सर्च फॉर इट, राइट? मैं वर्ड सर्च करूंगी, मैं प्रोफाइल सर्च करूंगी, मैं कंपनी सर्च करूंगी, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल ऑब्वियसली अपडेट होना चाहिए। इसका मतलब मेरा सेक्शन क्या है, मेरे कीवर्ड्स क्या है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरी सर्टिफिकेशंस क्या है। अगर आपको IFRS की कहीं से अपनी नॉलेज एज पर द सर्टिफिकेशन ग्रैब करी है, दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन माय लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। तो अगर मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है, तो डोंट थिंक अबाउट इट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी है, फिर मैंने सोच लिया तो मैं ग्रैब कर लूंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल फर्स्ट एंड योर रिज्यूमे, एंड देन सॉर्ट आउट कि इस कंट्री के अकॉर्डिंग मैंने ये सॉर्टिंग करी है, तो अब मुझे वहां पे कैसे जाना, राइट? हाउ टू अप्लाई ओवर इट। अगर मैंने MNCs को अप्रोच करना है, अगर मैंने बिग फोर्स को अप्रोच करना है अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? वन प्रोसेस इज के उसके लिंक्स जो हैं जहां से आपने अप्लाई करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उनको क्लिक करके यू विल बी एबल टू ग्रैब इट। कोई भी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आती है, दे आर गोइंग टू पोस्ट ओवर देयर, तो उनका जो ऑफिशियल पर्पस है, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो ग्लोबली रिकॉग्निशन के लिए है, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। आई शेयर द लिंक्स इन द कमेंट बॉक्स।
और आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा कोई और भी लिंक्स हैं जो रेलिवेंट हैं, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट फुल टाइम असिस्टेंस। आपको ये ना लगेगा इतना सारा बताया तो ये और बता देते, so that you will be able to grab the opportunity. Second process is through the way, like मैंने एक क्लाइंट ग्रैब किया था फ्रॉम अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो हमने कैसे ग्रैब किया था, लिंक्डइन पे मैंने फॉरेन जो मैनेजर्स हैं उनको अप्रोच करना शुरू किया था, दैट वी वर्क इन दिस डायरेक्शन, वी वर्क इन दिस डायरेक्शन, सो दिस वे यू विल बी एबल टू अप्रोच इट। बट उसके लिए आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट होना चाहिए, बिकॉज वेन एवर द मैनेजर और एनी पर्सन एट अ हाई पोजिशन इज गोइंग टू अप्रोच यू बैक, तो सबसे पहले यही देखेगा कि मैं किसके साथ बात करने जा रहा हूँ, कौन सा ऐसे पर्सन है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है। सो फॉर दैट यू हैव टू बिल्ड योर रिज्यूमे वेरी 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 वाइजली। तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल, बिल्ड योर रिज्यूमे, ये आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोसेस है, वीजा कैसे लगता है, सैलरी कैसे होती है, उनका वर्किंग कल्चर कैसे होता है, वहां सर्वाइवल कैसे होता है, कौन सी ऐसी डोमेन्स है जिसमें ज्यादा पैसे हैं, जिनके लिए हम अगर अपना करियर डेवलप करें तो वहां ज्यादा करियर डेवलप हो जाएगा। आई आंसर ऑल द क्वेरीज, बट ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें शेयर करनी होती हैं। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड द वीडियो इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, जो अपनी अपनी क्वेरी के हिसाब से आप वीडियो देख सकते हो। बट मोर ओवर इट, yes, if you want to explore the global opportunities, so this is a right track that you need to follow. Second, हर एक कंट्री का, जैसे मैंने बोला, प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, सो यू कैन ड्रॉप योर कंट्री दैट यू विश टू गो इन अ कमेंट बॉक्स। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोसेस या उसकी टेक्निक्स जो हैं, स्टेप्स या राइट स्ट्रैटेजीज, वो आपको शेयर कर दूंगी। बट बिफोर दैट, do decide which is your dream country, right, where you want to go। आपको UK, UAE, सिंगापुर, कनाडा, आपको कहाँ जाना है, drop the your answer in a comment box, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। So all the very best to all of you, all the very best for your journey। आप राइट स्ट्रैटेजी, राइट ट्रैक पे जाओ, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर योर ग्लोबल करियर, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।